Hello बच्चों, how are you? Hope you all are fine. Let us continue with the lesson, the 100 dresses part 2. I hope part 1 की स्टोरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है. So let us continue. See, थोड़ा सा एक शॉर्ट में एक हम कर देते हैं इसको रिवाइज पीछे का लेसन. इसमें we do have three characters. One is Vanda. So one is Vanda. The other one is Peggy. Peggy and Eddie. Okay, now these three are, you can say, are the classmates. Wanda is a poor Polish girl. Peggy is the most popular girl of the class, and Maddie's best friend is Peggy. Or you can say Maddie is a girl who is not as big Peggy. She is not a rich one, but still she is with Peggy. Okay, now what we have read, कि वांडा के साथ everybody is doing teasing. They are making fun of her name. They're asking many times about her number of dresses she has, and what they are doing. Wanda is not crying at all, but she is boldly giving the answers to the questions she has been asked. Okay, so this one the story. Now our context took place in the class, and Wanda has submitted 100 pictures, paintings, drawings. Now, what the thing is, let us read. Who won the contest? Who won the contest? Wanda won the contest, but she is not in the class. She is not coming to school. Okay, now let's see what happened. So, what is happening? All are circling the room, right? While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. Now this is very much understood that Miss Mason is the teacher, and who is circling in the rooms? All children are circling the room. They are just looking around the pictures which has been hanged. जो कॉन्टेक्स्ट की पिक्चर्स वहां लगी हुई हैं उसको ये सारे बच्चे सर्कल में घूम करके क्लास में पूरे में लगा रखी हैं और उसको देख रहे हैं. ओके, लाइक एन एग्जीबिशन. ठीक, तो टीचर ने वो लगाई है ताकि बच्चे उसे देख सके, एंड ऑल आर वेरी मच हैप्पी बिकॉज दे आर looking towards the fabulous pictures drawn by the contestants, out of which 100 paintings are those which are given by the Wanda. Okay, now principal office से एक letter आता है, a note आता है, and Miss Mason को देता है. Miss Mason read it several times. Now this you have to uh, uh, pay attention that she is reading a note. Note means वो बहुत बड़ा नहीं है. ठीक है, नोट मतलब छोटा सा ही है, और उसको वो कई बार पढ़ रही है. स्टडीड इट थॉटफुली, और बहुत थॉटफुली उसको वो पढ़ भी रही है. फॉर अ वाइल, मतलब काफी देर तक उससे थॉटफुली व्हेन यू थिंक सम अबाउट, उसके बारे में सोच रही है कि इसमें, यानी इसमें कुछ ऐसा लिखा है कि जिसके लिए टीचर को सोचना पड़ रहा है. देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, एंड देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स. नाउ व्हाई शी इज क्लैपिंग हर हैंड्स? Attention class. So she seeks attention from the class. All are, what they all are doing, they all are circling around the room, and they all are looking to the pictures which has been hanged in on the walls. Okay, so ये just to seek the attention, ताकि बच्चे attentive होकर के क्लास में मैडम को सुने. तो वहां पर
clap किया उसने, and everyone back to their seats, and she gave instructions. Now here what is she doing? She is giving instructions to the students to come back to their seats. Okay. Now when the shuffling of the feet has stopped, shuffling means तो आवाज आ रही है, चलने की आवाज आती है, घस 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 ऐसे आवाज आने लग जाती है जब ऑल आर, जब क्लास के अंदर सारे के सारे बच्चे अपने अपनी सीट में जाने के लिए, when they all are struggling, तो बीच में फीट की आवाज आती है, that is called shuffling of the feet had stopped and the room was still and quiet. Miss Mason said, I have a letter from Wanda's father and at that I want to read to you. Now, now here the letter is for the teacher, but the teacher wants that letter to be read in front of the students. Okay. Now there must be something in the letter. That's why Miss Mason wants to do this. तभी वो ऐसा करना चाहती है कि कुछ तो है उस लेटर में. Miss Mason stood there a moment and the silence in the room grew tense and expectant. Now, now you can realize इस चीज को, you can realize, visualize, उसको visualize करो, उसको सोच के देखो कि अगर टीचर किसी लेटर को पढ़ना चाह रही है, it means कुछ तो उसके अंदर ऐसा है, तो इससे एक टेंस माहौल हो गया है और वो एक्सपेक्टेड है. ठीक है. The teacher adjusted her glass close slowly and deliberately. Glass adjust करे. Her manner indicated that what was coming, this letter from Wanda's father, was a matter of great importance. So what was coming, कि क्या आने वाला था उस लेटर में, वो मैटर जरूर एक great importance रखता था. There must be something important. There must be something important in that letter, जो लेटर वांडा के फादर ने भेजा था. बच्चों को ये इंडिकेशन कैसे मिली? उस टीचर के मैनर से. नाउ हियर मैनर मीन्स द वे शी वॉज प्रिटेंडिंग, विद द वे शी वॉज बिहेविंग इन द क्लास, and the way she was instructing the students, the way she was adjusting her glasses, the way she was wanted students to listen to her, was showing that the matter must have has had some great importance. कुछ ऐसी important बात उस लेटर में थी, तभी टीचर उस लेटर को पढ़ना चाहती. Everybody listened closely as Miss Mason read the brief. Now you also listen it very carefully. अगर ये सिर्फ ये लेटर आपको एज अ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में आ गया, then you have to give the answer of each and every questions which will be arise after reading this. The dear teacher, my Wanda will not come to school anymore. Jack also. Jack must be her mother. Sorry, brother. Jack उसका brother होगा. Now we move away to big city. Now big city. Okay. No more holler Polak. No more ask my funny name. Plenty of funny names in the big city. Now, funny names. It means उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात लिख दी उसमें कि अब किसी तरह के कोई टीजिंग नहीं होगी, बुलिंग नहीं होगी बिकॉज ऑफ दी फनी नेम्स. तो वांडा पेंट्रोंस्की मस्ट हैव दी फनी नेम, और इसलिए शायद उन्होंने स्पेशली ये मेंशन किया कि वहां पर बहुत सारे बिग सिटी में बहुत सारे फनी नेम्स होंगे, सो नोबडी इज गोइंग टू मेक to teasing out of it because of it. Okay. Now a deep silence reading met the reading of this letter. Miss Mason took off her glass. Took off her glass मतलब अपने चश्मे उतार दिए. Blew and wiped them, साफ किया with a soft white handkerchief. Then she put them on again and looked at the class. ठीक है? And she looked at the class wearing the the specs. She looked at the class. Okay. And when she spoke, her voice was very low, right? So every time voice तेज है तो भी you have to understand कि क्यों, और जब low है then you have to understand कि क्यों, right? Every time कुछ important चीज होती है जब हमारी voice में changes आते हैं. तो यहाँ पर जब टीचर की वॉइस लो हुई है तो वो कुछ समझाना चाहती है. आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन रूम 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be a long unfamiliar one. Now this you can say, उसका नाम कैसा था? Long and unfamiliar one, according to the children. ठीक है? Okay.
तो टीचर कहती है कि किसी ने पर्पसली या डेलिबरेटली जानबूझ करके कोई खास तरीके के इंटेंशन के साथ ऐसा नहीं किया होगा, उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने की कोशिश नहीं की होगी, राइट। तो वो कहती है कि टीचर कह रही है कि नहीं करी। आई प्रेफर हु प्रेफर टीचर टू थिंक दैट वॉज सेड इन द थॉटलेसनेस। इस बारे में सोचा जाए कि जिसने भी कहा, जो भी कहा, वो बिना सोचे विचारे कह दिया। नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। हियर यू ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट इट। समटाइम्स व्हाट वी से एंड व्हेन वी whatever we say without any thinking about। नाप तोल के बोलो कहते हैं ना, दिस इज। ठीक है, शी वॉज नॉट क्राइंग एट ऑल, नो डाउट। वो आप नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको हर्ट हो रहा था, राइट। I know that all of you feel the way I do. That this is very unfortunate thing. So who is thinking that it was the whatever happened was an unfortunate thing? All, even the teacher. टीचर वॉज फीलिंग इट। अब क्या हुआ था, मान लीजिए इतनी सी लाइन आपको कॉम्प्रिहेंशन में आ गई और उससे पूछा कि द फील द वे आई डू, दैट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। व्हाट इज द अनफॉर्चुनेट थिंग? किसी के नाम की to make fun of anybody's name is an unfortunate thing. To hurt someone because the name is funny, because of the name, it is unfortunate. आप किसी भी चीज की what we read बिल्कुल अर्ली हमने क्या पढ़ा कि हम किसी को जज कैसे कर रहे हैं, because of the name या whatever the physical appearance, the beauty, the personality, the clothes. These all are the materialistic things, and it is very unfortunate when we judge someone because of all these things. So she says, so your teacher is saying that it is a very unfortunate thing. So what is unfortunate? To tease a girl because of a funny name, because of the clothes she used to wear, is an unfortunate. Okay, to have happened, unfortunate and sad both. Now what she says that वो unfortunate तो है ही, वो sad भी है, and I want you all to think about it. उसने क्यों बोला बाकी सबसे स्टूडेंट्स से कि you just think about it, because no student can think anything and it would be a great matter of argument. अगर वो क्लास में इस चीज को डिस्कस करती या किसने कहा था किसने नहीं कहा था, तो इट वुड बी अ मैटर ऑफ आर्ग्यूमेंट। क्लास में अच्छा भला आर्ग्यूमेंट हो जाता, तो वो जरूरी नहीं था कि उसको उसको इस तरह से देखती। और ये इंपॉर्टेंट था, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था कि वो इस चीज को सोचे और आगे अपने भविष्य में ऐसी चीज को रिपीट ना करे। क्या गलती करी है कि उन्होंने वांडा पेंट्रोस्की से जो भी बातें बोली, इट वॉज दे वर ऑल पर्पसलेसली, थॉटलेसनेस एंड अनइंटेंशनली। कोई बैड इंटेंशन नहीं था। ओके, सो कई बार हम बच्चे, हम जब करते हैं ऐसे कोई काम, तो कई बार हमारे कामों में कोई इंटेंशन नहीं होता, हम एवं ही किसी का मजाक उड़ा देते हैं, या विदाउट एनी रीजन हम किसी को टीज करते हैं, या हम कई बार ऐसे प्रैंक्स करते हैं जो हमें ये भी नहीं पता होता कि अगर हम ऐसा प्रैंक करेंगे और इससे क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, सो दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि नाउ इट्स टू मच, अब आप ग्रो हो गए हो। ठीक है, आपको ये चीज समझनी चाहिए कि हम जो भी प्रैंक करते हैं, जो भी हम किसी से बातें करते हैं, वो किसी के लिए हर्टिंग नहीं हो। नाउ द फर्स्ट पीरियड वाज अ स्टडी पीरियड। ओके, मेडी tried to prepare her lessons, but she could not put her mind on her work, right? She had a very sick feeling in the bottom of the stomach. तो ये सिर्फ ये है कि उसको सिक फीलिंग हो रही थी। क्यों सिक फीलिंग हो रही थी? क्योंकि मैडी ना, शी वाज फुल ऑफ गिल्टी। हम शुरू से ही देख रहे हैं कि उसकी जो फीलिंग थी वो फुल ऑफ गिल्टी थी। वो हमेशा सोचती थी कि आई एम गिल्टी, क्योंकि मैं इस चीज को मैं रोक सकती थी। ठीक है, सो समवेयर शी वाज इन गिल्टी। तो उसको यहाँ सिक फीलिंग हो रही है। एंड शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पेगी आस्क वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट। और वो कभी इस चीज को एंजॉय नहीं करती थी कि पेगी वांडा से ये पूछे कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। बट नाउ द थिंग इज, वो क्यों गिल्ट है? बिकॉज शी हैड सेड नथिंग। ये भी एक बहुत बड़ा गिल्ट है। ठीक है, कोई भी कुछ गलत काम कर रहा है और उसको आप होने दे रहे हो, आप उसको बोल नहीं रहे हो, उसके लिए अपोज नहीं कर रहे हो, तो वो भी अपने आप में क्राइम है।
आपके सामने ही कोई बच्चा कोई गलत काम कर रहा है और आप उसे कोई टोकते नहीं हो, तो ये भी गलत है। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वो वहीं पर खड़ी रहती थी उसके साथ और चुपचाप खड़ी होती थी, मतलब जो हो रहा है उसे होने देती थी। दैट वॉज जस्ट एज बैड एज व्हाट पैगी हैड डन। तो इसलिए वो उतना ही गलत था जितना कि पैगी ने किया, और वर्स था उससे। क्यों इसको मैं इसको ये अपने आप को वर्स कह रही है, या हमें लगता है कि ये उससे भी ज्यादा, पैगी से भी ज्यादा वर्स है, क्योंकि पैगी ने जो कुछ किया इट वॉज लिटरली अनइंटेंशनल, वो पर्पसलेस थी। ठीक है, लेकिन ये अच्छी तरह जानती थी कि मैडी कि ये चीज गलत है, क्योंकि वो भी उसी की तरह से एक पुअर गर्ल थी, बट द ओनली थिंग इज वो पैगी के क्लोथ पहन लेती थी, पैगी उसकी फ्रेंड थी, तो पैगी समवेयर उसके पास प्रोटेक्शन थी, सिक्योरिटी थी। उस वो जानती थी कि पैगी उसकी फ्रेंड है, तो उसके साथ वो ऐसा नहीं करेगी। हाँ, लेकिन वांडा के साथ ऐसा नहीं था। उसकी यूनिफॉर्म, उसकी ड्रेस, उसका नेम, उसका सब कुछ ऐसा था कि पैगी ने उसका जो भी उसका फन किया, जो भी उसके साथ बात करी, वो कैसे करी? पर्पसलेसली, थॉटलेसनेस, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। बट हियर मेडी कुड थिंक, मेडी को पता था कि वट एवर जो भी हो रहा है इट्स नॉट द करेक्ट वन। तो शी वॉज अ कावर्ड, तो वो कहती है कि मैं, वो कावर्ड है। एटलीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड दैट वॉज बीइंग मीन, बट शी हैड थॉट दैट, शी हैड थॉट, उसके दिमाग में ये विचार था कि दे वर डूइंग रॉन्ग, कि वो गलत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शी न्यू दैट दिस थिंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, शी कुड पुट हरसेल्फ इन वांडा's शूज, वो समझ सकती थी इस बात को कि वांडा किसको जैसा फील हो रहा है उसको भी फील ऐसा हो सकता है, राइट। और पैगी की कोई गलती नहीं है, बिकॉज उसको तो कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, तो goodness, wasn't there anything she could do? If only she could tell Wanda she hadn't meant to hurt her feelings. She turned around and stole a glance at Peggy. अब उसने कहा कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? अब क्या कर सकती हूँ? माय गॉड, अब क्या हो सकता है? ओके, फिर वो सोचती है कि she hadn't meant to hurt her feeling. कम से कम मैं उसको ये बता दूं कि भाई मेरी ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी कि मैं तुम्हें हर्ट करूं। She hadn't meant, हमारी कभी ऐसी, हमारी या उसकी कभी कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी कि उसकी फीलिंग्स को हर्ट करे। She turned around and stole a glance at Peggy. उसने पेगी की तरफ एक stole a glance मतलब एक झलक देखना। ठीक है, उसकी सिर्फ एक झलक देखी उसने, ये क्या कर रही है, जस्ट टू फाइंड आउट कि कर क्या रही है। बट पेगी डिड नॉट लुक अप, शी सीम्ड टू बी स्टडिंग हार्ड। ऐसा लग रहा था, इट वॉज सीम्ड टू बी, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत जमकर पढ़ रही है, हार्ड पढ़ रही है। Well, whether Peggy felt badly or not, Maddie, had to do something. तो मेडी को लगा नो, उसको तो कुछ करना पड़ेगा। क्या करना चाहती थी? शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोस्की, मुझे वांडा पेट्रोस्की को ढूंढना पड़ेगा। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, हो सकता है वो अभी गई ना हो, भाई लेटर तो अभी आया है, हो सकता है नहीं गई हो। मे बी पेगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर, हो सकता है पेगी भी उसके साथ जाए, एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वन द कॉन्टेस्ट, तो उसने कॉन्टेस्ट जीत लिया है, एंड दैट दे थॉट शी वाज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल। नाउ दिस इज हाउ शी मेडी दिस इज हाउ मेडी वांट्स टू कंसोल वांडा। उसको ये बताना चाहती थी कि नो, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। ओके, नो, व्हाट डिड मिस्टर पेंट्रोस्की लेटर से? क्या कहते हैं कि तीन चीजें। नंबर वन, शी वुड Wanda would come, will not come to school anymore. Number two, they are moving to a big city. And number three, there would be many funny names there, and no one will make fun of her name. Okay. Now, is Miss Mason angry with the class, or she is unhappy or upset? She is not angry. She is not angry, but she is upset. ठीक है, अगर एंग्री होती तो वो डांटती, लेकिन वो अपसेट है। शी इज अनहैप्पी एंड शी इज अपसेट कि भाई ऐसा क्लास में हुआ। ठीक है, द अनफॉर्चुनेट थिंग हैपेंड इन द क्लास। हाउ डिड मेडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम द वांडा's फादर? मेडी को कैसा लगा? शी वॉज रियली वेरी अपसेट, शी हैड अ सिक फीलिंग बॉटम ऑफ द स्टमक, she was very sad, and she was feeling somewhere, she was feeling guilty, she was suffering from guilty, we can say, that she could
stop this. Um, um, she could stop all this nonsense. What had Maddie want to do? Maddie want to she want to tell Wanda that what she want to tell Wanda that she hadn't meant to hurt her feelings. Okay? She wanted to tell Wanda that she had won the contest and they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful. You can add all the lines. Okay, so this is what Wanda also say. I think this is all for today. Thank you so much. We will continue this lesson in next session.